Alleluia, alleluia, Gosanya Bai, Alpante Omega Niniyaba. Alleluia, alleluia, Gosanya Bai, Alpante Omega Niniyaba. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. Got Bartane Chanjo Nini Gosani. Gotere ne banatro Nini Gosani. Got Bartane Chanjo Nini Gosani. Gotere ne banatro Nini Gosani. Tere ne doleletri. Gotere ne bach. Gotere rajanano Nini Gosani. Gotere ne doleletri. Gotere ne bach. Gotere ne rajanano Nini Gosani. Alleluia, alleluia, Gosana Bai. Alpate Omega Niniyama. Alleluia, alleluia, Gosana Bai. Alpate Omega Niniyama. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. Papi maleri narete te Gosani. Dharmi maleri mere koyu Gosani. Papi maleri narete te Gosani. Dharmi maleri mere koyu Gosani. Sabana doti bare namki Gosani. Juga jogi tanga sangala doko Gosani. Sabana doti bare namki Gosani. Juga jogi tanga sangala doko Gosani. Alleluia, alleluia, Gosanya Bai. Alpate Omega Niniyaba. Alleluia, alleluia, Gosanya Bai. Alpate Omega Niniyaba. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. Raja rite raja, Mola rite mola, Gote te gote Nini Gosani. हो गया अंकल, धन्यवाद। सूरजेर आकाशे নীলিমা দেখিছি তোমার মহিমা চাঁদের জ্যোৎস্নায় আর তার তারা দেখিছি তোমার মহিমা দেখিছি তোমার মহিমা শুনেছি প্রভু তুমি আছো সদা সকলের পাশে খুঁজেছি প্রভু তোমায় গত শতবার আমার গভীর শুনেছি প্রভু তুমি আছো সদা সকলের মাঝে খুঁজেছি প্রভু তোমায় গত শতবার আমার আলোয় আকাশে নীলিমা দেখছি তোমার নাই আর তার তারা দেখেছি তোমার দেখেছি তোমার পাখির গায়ে আর জীবন তার শুনেছি তোমার শীতল ছাওয়া তোমার চাওয়া প্রভু পাখির গানে আর জীবন তার শুনেছি তোমার শীতল ছাওয়া তোমার চাওয়া প্রভু লা 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 লা
la 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 আলোয় আকাশের নীলিমায় দেখেছি তোমার মহিমা চাঁদের নাই আর তারায় তারায় দেখেছি তোমার মহিমা দেখেছি তোমার মহিমা দূরে দিগন্তে আকাশে করতে ছুড়ে আছে প্রভু ফুলের সুবাসে আসুক গাছে জুড়ে আছে প্রভু দূরে দিগন্তে আকাশে করতে ছুড়ে ফুলের সুবাসে আসুক গাছে জুড়ে আছে প্রভু La 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 উড়েছে আলোয় আকাশের নীলিমায় দেখেছি তোমার মহিমা চাঁদের ওই জ্যোৎস্নায় আর তারায় তারায় দেখেছি তোমার মহিমা দেখেছি তোমার हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के अंत भी तू है और अंत भी तू है अल्फा भी तू है ओमेगा तू ही है अंत तू है और अंत भी तू है अल्फा भी तू है ओमेगा तू ही है समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के तू सृजनहारा है तू पालनहारा है तू तारनहारा है मेरा प्रभु तू ही है तू सृजनहारा है तू पालनहारा है तू तारनहारा है मेरा प्रभु तू ही है समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गुण सदा यीशु के मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गुण सदा यीशु के मार्ग तू ही है सच्चाई तू ही है जीवन तू ही है मेरा रक्षक तू ही है मार्ग तू ही है सच्चाई तू ही है जीवन तू ही है मेरा रक्षक तू ही है हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के आवाज उठाऊंगा मैं नाम लगाऊंगा तू यीशु महान है या गीत सुनाऊंगा आवाज उठाऊंगा मैं नाम लगाऊंगा तू यीशु महान है या गीत सुनाऊंगा हर समय हर हाल हर परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है गाऊंगा गुण सदा यीशु के मेरे जीवन
जीवन का एक ही सहारा वो है, गुण सदा यीशु की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कुमार रवि है और मैं गढ़वा जिले के एक ओबरा गांव के निवासी हूं और प्रभु ने हमें इस जगह में 2015 में अकेला चुना और उसी के साथ जो है हमारे साथ ही लगभग 5 जवान भाइयों को जो है प्रभु ने चुना था। उन्हीं में से मैं भी हूं और हमें ये अवसर मिला था प्रभु को जानने का। हमारे बीच में भैया अनिल राज डेविड हैं, वो उनके माध्यम से उनके साथ एक टीम आई थी हमारे क्षेत्र में और टीम के द्वारा ही हम लोगों ने प्रभु को जाना और उसी समय जो है हम लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया और फिर उसी तरह से जो है हम लोगों ने फिर विश्वास में संगति करते करते फिर अभी तक जो है हम लोग यहाँ पर आज आप लोग के साथ मिल पा रहे हैं, आप लोग के साथ अपना गवाही को शेयर कर पा रहे हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए प्रभु को जानने के बाद, जो कि एक एक बातों को हम अगर ये उल्लेख करें, एक एक बातों को बताए तो शायद ये समय नहीं है कि भरपूरी नहीं है कि हम एक एक बातों को बता पाएंगे। पर प्रभु ने मुझे इस क्षेत्र में चुना, मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मेरे साथ 5 भाई लोग थे, मेरे ही एज के, मेरे फ्रेंड लोग थे टोटली, लेकिन वो सारे लोग जो हैं अभी पीछे चले गए विश्वास से। सिर्फ एक है, एक और भाई है विश्वास में जो कि अभी भी रुका हुआ, पर वो अभी भी वो डगमगाते रहता है। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी प्रभु और ऐसा क्षेत्र में भी प्रभु मुझे जो है विश्वास में अभी भी मजबूत करके रखा और अभी भी हम संगति में हैं और जहाँ मौका मिलता है तो लोगों के बीच में जा करके प्रभु के कार्यों को भी करते हैं, कलीसियाओं में या फिर लोगों के बीच में जा करके सुसमाचार बांटने का भी कार्य करते हैं। मैं अपने क्षेत्र में अभी अकेला विश्वासी हूँ। ऐसे मैं पूरे गांव में अकेला विश्वासी भी बचा हूँ। हमारे पहले बहुत सारे विश्वासी आए थे उसमें, लेकिन सबके सब पीछे हो गए और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं अकेला बचा हुआ हूँ। सारे लोगों को पीछे जाने का वजह ये हो गया कि हमारे गांव में जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं, बीएसपी के लोग हैं और वो भी कट्टर लोग हैं और वो खासकर मेरे ही घर के लोग हैं, मेरे अंकल लोग हैं और मेरे कजन भाई लोग हैं, सारे लोग लीडर हैं और शुरू से ही उनका इच्छा रहा कि हम उनके अनुसार चले, हम उनकी बातों को सुने और उनके अनुसार चले, जिसके कारण कि हम जो है उनकी बातों को नहीं सुनने और सुन करके हमेशा जो अवॉइड करते रहे। और उसी समय जो है प्रभु ने हमें 2015 में चुना और जब प्रभु ने हमें चुना तो हम प्रभु के पीछे अपनी दौड़ को या फिर प्रभु के जानने की लालसा से और प्रभु के प्रेम को जब मैंने चखा तो उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट किया, प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगा, मेरे चाचा लोग और मेरे भाई लोग जो हैं वो डायरेक्टली मुझे नहीं अटैक किया, डायरेक्टली मुझे टारगेट नहीं किया, वे लोग जो है मेरे परिवार को टारगेट करने लगे और साथ ही मेरा परिवार भी, जबकि मैं उनके बता करके मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था और मैंने बपतिस्मा भी लिया 2016 में, तो बतला करके भी नहीं लिया था, तो मेरा परिवार भी जो था वो मेरे अगेंस्ट में थे। लेकिन हर एक कंडीशन में जो है मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें जगह जगह पर मुझे संभालते आया अभी तक और हर एक कुछ फेस करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसी दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जब प्रभु को जाने। प्रभु मैं यहाँ जानने के बाद 2 साल गढ़वा में रहा और गढ़वा के बाद फिर मुझे प्रभु के द्वारा ही मुझे उसकी योजना के अनुसार फिर मुझे मौका मिला 2 साल भैया के साथ रहने के लिए। अनिल राज डेविड जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ मौका मिला कि हम 2 साल उनके पास भी रहे और मैंने उनके द्वारा बहुत सारी बातों को सीखा जो कि आज हमें जो है मसीही जीवन में बढ़ने के लिए बहुत मुझे प्रेरित करता है। एक एक बातों को जो है हमें आगे बढ़ाने का जो है रास्ता दिखाता है। जबकि हम उतना मजबूत नहीं थे क्योंकि हमारा समाज जो है पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा टारगेट किया। 2000 यही पिछले साल की बात है कि मेरे साथ
एक बैठक हुआ, वो भी अंधेरे में करके मुझे नहीं बताया कि मेरे ऊपर बैठक होने वाला है, पर पूरा कमिटी होकर के हमारे गाँव में जितने समाज के लोग थे, वो लोग सारे लोग अंधेरे में मुझे बतलाया कि नहीं मेरे ऊपर बैठक होने वाला। लोग बोला कि नहीं ते गाँव में शादी है, तो शादी के लेकर के कुछ प्रोग्राम है, तो उसमें कुछ सहभागी होना होगा, तुमको हेल्प करना होगा, आओ यहाँ पर मीटिंग होगी। ऐसा करके उन लोगों ने मुझे बुलाया और बुला करके उसी समय जो है मेरे पर्सनल लाइफ को जो है बहुत टारगेट करके निचोड़ते हुए मेरी मम्मी भी पिछले साल गुजर गई अक्टूबर में, नहीं रही। मम्मी भी उस समय में थी, वो बेड में थी, 3 साल वो बेड में रही। उनको लकवा का शिकायत था, लकवा के पेशेंट थी। उनको लेकर के पापा भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं घर में अकेला एक बड़ा एक बोला जाए तो एक घर का खंभा हूँ मैं, जो कि घर को सँभाल सकूँ। तो सारी चीज़ों को जो है टारगेट करके चारों तरफ से दबाने की कोशिश किया कि ऐसे करोगे तो वैसे करेंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। अभी मान लो तुम्हारी मम्मी को कुछ हो जाता है, हम लोग गाँव समाज होकर के तुम्हारे मम्मी को जलाने नहीं जाएँगे, काम क्रिया को नहीं करने देंगे। बहुत सारे बातों को लगा टारगेट करने। शादी-विवाह को भी लेकर के कि देखते हैं तुम लोग कैसे करते हो, कैसे अकेले कर लोगे। और मम्मी की स्थिति को देख कर के शादी की भी प्लानिंग चल रही थी पिछले 2 सालों से। पर प्रभु की अनुग्रह कि इस वर्ष प्रभु ने वो भी सफल किया और इस समय में भारती कुमारी के नाम से मेरी वाइफ भी इसमें है, कनेक्ट है। प्रभु ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि मैं एक-एक चीज़ों को जो है मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हर जब-जब कभी भी और हर एक स्टेप में ऐसा नहीं हुआ कि कोई चुनौतियाँ ना नहीं पड़ा। मम्मी का देहांत हुआ, मम्मी जब देहांत हुआ उनका, तो उस समय जिधर मम्मी का मेरा उधर लाश जल रहा है, तो सारे लोग कमिटी करके मेरे ऊपर बैठक किया हुआ है। उस समय में सारा कमिटी का मुँह एक तरफ और मैं पड़ा अकेला एक तरफ। मेरा कोई बात सुनने वाला उस समय भी मैं बहुत टूट गया। शादी को लेकर के इससे पहले वही मेरे चाचा लोग ही जो है वो एक अपने ही समुदाय से बीएसपी के एक लीडर के अनुसार ऐसा बातचीत चला, उसको लेकर भी बहुत सारा परेशानी किए लोग। ऐसा लगता था कि मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। हर स्टेप में अकेला महसूस होता था। लेकिन उसी जब कभी भी अकेला महसूस हुआ, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आपने मुझे चुना है और यदि आपने चुना है तो आपका मकसद भी कुछ ज़रूर होगा और वो मकसद को प्रभु हमें देखने के लिए वो आँखें दीजिए, वो समझ दीजिए कि हम समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। और सचमुच में हम हियाव के साथ जो है प्रभु में बने रहे, प्रार्थना करते रहे और प्रभु हर एक कार्य को हमारे सोच से बहुत ही बेहतर होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मम्मी के कार्यों को भी कर चुके, जबकि ऐसा था कि मेरे घर के सामने जो बच्चा मेरे घर में पला हुआ था, वो लोग को आने पर दंड लगा दिया गया था कि यदि कोई उसके घर में जाएगा तो 5 लात उसको मारा जाएगा और 5,000 रुपया फाइन दिया लगेगा। यहाँ तक कि कुआँ का पानी पास में कुआँ है, लेकिन उस कुआँ से पानी तक नहीं लेने दिया गया। वैसी परिस्थिति में भी दूर से ही लाया, लेकिन हर एक कार्य को करने के लिए सहायता किया। विगत 4th मई को शादी के दौरान भी उससे पहले एक कमिटी बैठक हुआ। कमिटी में सब लोग यही उन लोग बैठक किया था कि देखते हैं वो मसीही विवाह कर रहा है तो कैसे करता है, हम लोग नहीं होने देंगे। और ये भी बात है मुझे कमिटी के मेंबर से ही पता चला बाद में, जब शादी को हम कंप्लीट कर चुके तब जाकर के मुझे पता चला कि नहीं आपके कमिटी के लोग जो हैं ऐसा-ऐसा प्लानिंग कर रहा था। लेकिन शादी भी बहुत अच्छी रीति से हुआ, उसमें भी कोई रुकावट नहीं हुआ और बहुत सारी एक-एक बातें हैं जो कि फर्ज़ इतना झकझोरा गया मुझे मसीही लाइफ में कि जब कभी याद करते हैं ना एक-एक बातों को तो लगता है कि प्रभु का अनुग्रह है कि हाँ, सचमुच में प्रभु देखता है अपने बेटों-बेटियों को कि प्रभु कैसे उसके बेटे को कितना तकलीफ दिया जा रहा है, कितना परेशानी दिया जा रहा है। लेकिन एक-एक स्टेप में जो है प्रभु सँभाला। हमें यहाँ तक कि घर वालों से, मेरे गोतिया लोगों से ये धमकी दिया गया था कि तुमको घर से, समाज से, गोतिया से, यहाँ तक कि ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन प्रभु बहुत ही अचंभा रीति से कार्य किया। शादी के दौरान भी मेरे मन में बहुत डर था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे एक-एक स्टेप को। लेकिन
प्रभु बहुत ही अचंभित रीति से मेरे पूरे परिवार के मन को इस रीति से बदला कि हर एक कार्य में मेरा परिवार, हर एक लोग जो है वो सहायता किए और हर एक कार्यों में जो है वो सहयोग करते हुए और कार्यों को सफल किए। प्रभु सचमुच में हमारे सुधि लेता है और सुधि लेते हुए हमारे जीवन को चलाता है। इस चीजों को एक बार नहीं, बहुत बार मैंने ये महसूस किया। जब मैं बपतिस्मा लिया था उसी समय लगभग 20-25 दिन जो है मुझे बहुत भयानक तबीयत खराब हो गया था। उस समय में भी मेरे घर के लोग भी यही बोल रहे थे कि क्यों किया था, जब इतना बड़ा है तेरा प्रभु तो क्यों अचानक जैसे ही तू ये किया तैसे तो तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हो गया। लेकिन उस समय में भी प्रभु हमें एक अलग हियाव दिया और उस हियाव के साथ हम बने रहे, उससे भी प्रभु हमें उबारा। और अभी तक मेरा परिवार विश्वास में नहीं है, पूरा फैमिली, लेकिन हमारे अगेंस्ट में भी नहीं है और हमारे साथ अभी हर एक कार्यों में जो है अपनी सहमति को दिखाते हैं और किसी प्रकार की रुकावट नहीं करते। और साथ ही साथ जब मैंने शादी किया तो एक और भाई को जब मैंने बताया कि अभी भी वो विश्वास में है, उसे भी एक साहस मिला, ताकत मिला। और उस भाई ने भी जो कि बाहर में शादी करने वाला था, अपने ससुराल तरफ में ही, छत्तीसगढ़ में उन लोगों का प्लानिंग हुआ था, लेकिन जब मैंने किया और हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं हुई तो उसको एक साहस मिला और वो भाई ने भी फिर अच्छा से प्रोग्राम करते हुए, सुसमाचार सभा का भी प्रोग्राम करते हुए वो भाई ने फिर पुनः दोबारा शादी की। हमारे गांव में दूसरा शादी हुआ मसीह, और सारे लोग जो लोग अगेंस्ट में थे वो सारे लोग इकट्ठा होकर के सुने, लेकिन उसमें भी लोग खड़ा हो रहे थे, लेकिन प्रभु उसमें भी जो है संभाला हर एक लोगों को। और भी बहुत सारे प्रभु के कार्य हैं हमारे जीवन में जो कि एक एक बातों को हम स्मरण नहीं कर सकते। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला। साथ ही आप सबों से निवेदन है कि हमारे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें, कि विशेषकर मेरे पापा के लिए, कि उनका तबीयत, वो बहुत एजेड हो चुके हैं। मेरे पापा लोग 6 भाई होते हैं जिसमें कि सबसे बड़े मेरे पापा हैं और उनका तबीयत हमेशा रह करके खराब होते रहता है। उनके लिए प्रार्थना करें। एक भाई है, एक बहन है, अभी वो लोग भी बैचलर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। वो भी प्रभु को अभी नहीं जानते हैं, प्रभु के प्रेम से अभी अलग हैं। प्रभु चुने, प्रभु के पास वे लोग आए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि हर एक लोग, जैसे अभी तक प्रभु हमें उस क्षेत्र में संभाल करके रखा है, एक नया कार्य हो हमारे परिवार के द्वारा उस जगह में, और फिर से उस जगह में प्रभु के राज्य आए। इसके लिए हमारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर अजित आपका गवाही के लिए। और सुबह में इस पद को मेरे बाइबल में मैंने अंडरलाइन किया था। ये नीति वचन 3 अध्याय और 26 पद ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा।